Hello students, welcome to chemistry classes once again, and today we will going to discuss the new topic. The next topic is second order reaction. You know that in the previous classes we already discussed about the zero order reactions, then first order reactions, and today we will start the second order reactions. So first we define what are the second order reaction, then we will go for the derivation for the rate constant for the second order reactions. So start now. You can see on the board, we will going to discuss about the second order reaction. So first we define what are the second order reactions. So you can see when the two substances, that means जब दो substance react, अगर वो एक दूसरे से react करें, and if the concentrations of both, और यदि दोनों की concentrations change, यदि दोनों की concentrations change हो, appreciably the reaction is said to be the second order reaction or biomolecular. लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर के लिए जब डिस्कस किया था तो बताया था कि अगर किसी भी रिएक्शंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है देन इट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और अगर रिएक्शन में अगर मोर देन वन रिएक्टेंट्स हैं तो अगर उसमें से केवल एक मॉलिक्यूल्स की रिएक्टेंट मतलब अगर कंसंट्रेशन चेंज होती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर टू मॉलिक्यूल्स की अगर एक साथ टू मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है सो इट विल बी द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. एंड वी हैव ए इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. यू कैन सी दैट when we take ethyl acetate into the test tube and we have to be added the sodium hydroxide into it, so there is a two compound will be formed, sodium acetate and ethyl alcohol. In this reaction you can see that there are concentration change for the both, दोनों की concentrations यहाँ पे change होती है, so that's why it will be the second order reaction. If you want to the rate, so the rate is equals to rate constant and the concentration of CH3 C double O C2H5 and the concentration of NaOH, right? इस तरह से यहाँ पे concentrations आएंगी. अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि how many types of second order reactions. You can see that there are two types of second order reactions, यानी कि second order reactions हमारे पास दो टाइप की होती हैं. Now let us start. टाइप 1, हम यहाँ पे टाइप 1 की बात करते हैं. सपोज वी हैव ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस जस्ट लाइक 2A gives out प्रोडक्ट, विच मीन्स यहाँ पे एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है कैपिटल A और वहां पे उसके टू मॉलिक्यूल्स हैं. यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स हैं मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिया है उसके टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए हुए हैं. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज ये सपोज कर लेंगे कि इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो स्मॉल a है और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0 व्हेन t इक्वल्स टू 0. एंड सपोज इन t सेकेंड, अगर t सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x हो जाती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a माइनस x होगी. सो नाउ प्रोसीड. यहाँ पे अगर हम बेटा रेट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे आएगा बेटा कंसंट्रेशन A. अब क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या लगाएंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक ही टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा था कि यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स टू सब्सटेंस है और दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होगी बोथ. So the rate directly proportional concentration A square and put the value of concentration A which is A minus X. So finally the rate directly proportional A minus X whole square and hide this proportionality sign, so rate equals to rate constant K and A minus X whole square. And we know that rate, what is the rate? The rate is dx over dt और यहाँ पे इक्वल्स टू और यहाँ पे k a minus x whole square, right? Now separate the equations, so you will get 1 over a minus x whole square dx is equals to k dt. Now suppose it will be equation number 1. तो यहाँ पे बेटा जो इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट की है, it is the differentiate form of the rate constant or rate constant for the second order reaction. ये differentiate form है. तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे फॉर बोथ साइड.
ऑन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बेटा हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे k dt। तो यहाँ पे बेटा जब इंटीग्रेशन जब हम दोनों साइड पे करेंगे तो इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नीट और बायो के जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पे इस वाले पोर्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो डेनोमिनेटर में जो फंक्शन दे रखा होता है उसको हम थोड़ी देर के लिए कुछ लेट कर लेते हैं। सपोज a माइनस एक्स हम कुछ भी यहाँ पे लेट कर लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे t लेट कर लिया, a माइनस एक्स की जगह हमने क्या लेट कर लिया, t। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास a है, a कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है। तो यहाँ पे 0 और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, यहाँ पे dx और यहाँ पे हो जाएगा dt। तो आपने क्या देखा कि dt इज इक्वल्स टू हो गया माइनस dx, राइट। नाउ अब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस एक्स के प्लेस पर हम रखेंगे t स्क्वायर और यहाँ पे dt। t को जब बेटा ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या होगा, t रेज पावर -2 एंड dt। अब यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास x dx है, दैट मीन्स वी हैव टू बी डिफरेंशिएट x, मतलब x का डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला होता है बेटा nx n-1। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x का, इंटीग्रेशन x dx, तो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो अब यहाँ पे हमें तो इंटीग्रेशन करना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x की पावर n+1। तो x की प्लेस पर हमारे पास क्या है, t टू द पावर -2+1 अपॉन -2+1 और यहाँ पे dt है, यहाँ पे dt है। तो dt की जगह हमें क्या लगाना है, माइनस dx। तो माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हो ही गया हमारे पास, इंटीग्रेशन हटा देंगे, यहाँ पे माइनस हमारे पास हो ही गया। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे t टू दी पावर कितना आ जाएगा, -1 और यहाँ पे कितना बचेगा, -1। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे dx आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद यहाँ पे बचेगा t टू दी पावर -1 dx। इनवर्स यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन टी और यहाँ पे dx। t का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन a माइनस एक्स और यहाँ पे dx तो हमने हटा ही दिया, यहाँ पे dx तो हट ही गया हमारे पास यहाँ पे। तो क्या होगा, फाइनली हमारे पास 1 अपॉन a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिला 1 अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे पूरा फिनिश करेंगे 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जैसे ही हमने उसका इंटीग्रेशन किया तो 1 अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा 1 अपॉन और यहाँ पे a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक तो हो जाएगा kt और प्लस करके क्या होगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा c। लेट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन इनिशियल, आपको पता है कि इक्वेशन 2 आने के बाद दो कंडीशन लेट करते हैं, उसमें से फर्स्ट कंडीशन होती है इन इनिशियल। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करेंगे, इन इनिशियल। तो इनिशियल में क्या करना होता है, कंडीशन पता है ना आपको, क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले टाइम टेकन, जो रिएक्शन का जो टाइम है वो 0 लेट करके चलते हैं। और जब टाइम 0 होगा तो जो हमारे पास कंसेंट्रेशन जो होगी, प्रोडक्ट की जो कंसेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0। पुट हियर देन, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस 0 एंड देयर इज k मल्टीप्लाई 0 एंड प्लस c एंड c इक्वल्स टू, इट बिकम्स 0 एंड इट बिकम्स 1 ओवर a। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 अपॉन a। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 की हेल्प यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1 अपॉन a माइनस एक्स और यहाँ पे kt और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन a। इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बेटा जैसे ट्रांसफर कर लेंगे इसे। सो लेट बी ट्रांसफर, we will get 1 upon a minus x, 1 upon a minus x और यहाँ पे बेटा
-1/a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा kt एंड नाउ टेकिंग एलसीएम, सो द एलसीएम विल बी a minus x. Now, so a minus x will be cancelled, so there is a minus here, a is cancelled, so a minus x, and there is kt is equals to, यहाँ पे क्या होगा a minus a और यहाँ माइनस प्लस x हो जाएगा और अपॉन a, और यहाँ पे a माइनस एक्स दे बिकम्स कैंसिल, सो kt इज इक्वल्स टू x अपॉन a माइनस एक्स। t को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। तो हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यानी कि k की जो वैल्यू फाइंड आउट की, तो हमने क्या लिखा, k इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 1/t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। अगर इन सबको डिफाइन करना हो कि यहाँ पे क्या है, तो हम कह सकते हैं वेयर k इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे ये जो है बेटा रेट कांस्टेंट है, और t इज इक्वल्स टू टाइम टेकन, t जो है बेटा वो टाइम है, एंड x इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है एट टाइम t टाइम पर, एंड a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, a जो है बेटा वो इनिशियल कंसंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है एट t इक्वल्स टू 0, एंड a माइनस एक्स इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, यहाँ पे ये जो है बेटा वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, राइट। तो हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जनरली जब आप आईआईटी और नीट के लिए जब जाओगे, तो आई थिंक मेरा जो सजेशन है वो इस वाले ऑर्डर के लिए रहेगा, क्योंकि जनरली आपको अगर सेकेंड ऑर्डर का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको फेस करना होगा तो वो इस तरह की आपको रिएक्शंस मिलेगी, मतलब टाइप 1 की। तो ये जो हमारे पास जो रिएक्शन का जो टाइप था वो टाइप 1 था, और टाइप 1 रिएक्शन के लिए आपको न्यूमेरिकल फेस करना हो सकता है, और अगर आप रिएक्शन आप फेस करेंगे भी तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले से आप रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, टाइम टेकन बाय द रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन हम यहाँ पे जो सेकंड टाइप है उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे कि सेकंड टाइप में हम अगर हमारे पास जो रिएक्शन अगर सपोज दे दी जाती है तो हम उसके लिए रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे वो आप देखेंगे। तो सारे स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखेंगे कि सेकंड टाइप जो हमारे पास रिएक्शन होती है सेकंड ऑर्डर, वो उसके लिए हम रेट कांस्टेंट कैसे ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होगा बेटा, देयर आर 2 रिएक्टेंट्स वी हैव, हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स होंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा, मतलब ए कैपिटल ए और ए कैपिटल बी, और दोनों की ही कंसेंट्रेशन चेंज होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो सपोज कि यहाँ पे इसकी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो ए है, स्मॉल ए, और इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो स्मॉल बी है, और यहाँ पे 0 किस कंडीशन में, एट टी इक्वल्स टू 0। अब सपोज यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है वो a माइनस एक्स हो जाएगी, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन b माइनस एक्स हो जाएगी, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 2x, x 2x, और यहाँ पे टाइम टेकन बाय द रिएक्शन इज t सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो आई है इसके लिए हम रेट के लिए मतलब रेट कांस्टेंट के लिए डेरिवेशन के लिए जाएंगे। सो सिंपली जैसा करते आए हैं वैसा ही करेंगे। सो सपोज यहाँ पे जो रेट जो होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन A एंड कंसंट्रेशन B एट टाइम t। So put the values of the concentration. So rate equals to rate constant, and the concentration A will be A minus x, and the concentration B will be B minus x. And we know that what is the rate? The rate is dx over dt is equals to rate constant K, A minus x and B minus x, right? Now separate the equation. So you will get 1 upon a minus x
बी माइनस एक्स इज इक्वल डी एक्स इक्वल्स टू के डी टी. सो दिस विल बी डिफरेंशिएट फॉर्म. ये सेकेंड ऑर्डर टाइप 2 के लिए डिफरेंशिएट फॉर्म है. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स का यहाँ पर रूल लगाएंगे. आपने 11th मैथमेटिक्स में सीखा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन सीखा होगा. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसके ये वाला जो पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे. तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कैसे हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन जो है यहाँ पे निकालेंगे. तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा डेरिवेशन मुझे कमेंट में देंगे सारे स्टूडेंट्स. मैं सबके लिए होमवर्क ये दे रहा हूँ. तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, डायरेक्टली आपको रिलेट बता रहा हूँ. सो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पार्शियल फ्रैक्शन. तो यहाँ पे हम बेटा पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जो पोर्शन हमें ये वाला दे रखा है, दैट मीन्स 1 अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स. इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा 1 अपॉन बी माइनस ए इन द अनदर ब्रैकेट 1 अपॉन a minus x minus 1 upon b minus x. So it will be the partial fraction form of the given function 1 upon a minus x into b minus x. So put the value of this into the partial fraction form. So we have 1 upon b minus a, 1 upon b minus a, and 1 upon a minus x माइनस 1 अपॉन b माइनस एक्स, यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू k dt. सो इट विल बी इक्वेशन नंबर 2. अब पहले की तरह हमें क्या करना है, इंटीग्रेट इन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे. तो ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में. तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, b माइनस ए, वहां पे x का टर्म तो है नहीं है, और जब x के रेस्पेक्ट में जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो b माइनस ए में तो कोई भी x का टर्म है नहीं, तो इट विल बी कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारे फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर देंगे. तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन b माइनस ए, इट विल बी कांस्टेंट. एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे बेटा 1 अपॉन a माइनस एक्स, 1 अपॉन a माइनस एक्स एंड माइनस 1 अपॉन b माइनस एक्स डी एक्स. यहां पे बेटा k कांस्टेंट रहेगा और t का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है dt, t के रेस्पेक्ट में dt. अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले जैसे हमने इंटीग्रेशन सीखा था कि इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन a माइनस एक्स का. तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली वे में लेट कर लेंगे a माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे t लेट कर लेंगे. डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 0 x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, x के लिए 1 हो गया और यहाँ पे dx और यहाँ पे हो गया dt. तो फाइनली dt की प्लेस पर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस dx, या फिर dx की जगह यहाँ पे dt लगा सकते हैं, dt की जगह माइनस dx. उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि हमें फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन a माइनस एक्स और यहाँ पे dx. तो अगर यहाँ पे 1 अपॉन a माइनस एक्स के प्लेस पर हमें क्या लगाना है, t, और dx के प्लेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के dt. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ln t आ जाएगा यहाँ पर, ln और यहाँ पे t, ln t आ जाएगा. t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ln t की वैल्यू कितनी है, माइनस ln और t की वैल्यू a माइनस एक्स. तो हमने देखा कि अगर हम इस वाले फंक्शन का अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस ln a माइनस एक्स होता है. सिमिलरली अगर इस फंक्शन का करेंगे तो माइनस ln b माइनस एक्स हो जाएगा. तो यू कैन यूज दिस रफ वर्क. सो वी विल पुट हियर, सो देयर इज 1 अपॉन b माइनस ए, b माइनस ए. यहाँ पे बेटा इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे आया माइनस ln a माइनस एक्स, राइट. माइनस यहाँ पे हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ln b माइनस एक्स, राइट. उसके बाद यहाँ पे करेंगे सिमिलरली एक kt आ जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. थोड़ा सा से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन
b minus a, 1 upon b minus a, and there is minus ln a minus x, minus minus plus, so plus ln b minus x, right, and is equals to kt plus c. So पॉजिटिव फंक्शन पहले लिखेंगे, नेगेटिव बाद में. सो देयर इज 1 अपॉन b माइनस a एंड ln b माइनस x एंड माइनस ln a माइनस x एंड देयर इज kt एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. अभी क्या होगा, यहाँ पे ln m माइनस ln n का फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पे, और फॉर्मूला लगाने पर यहाँ पे ln m अपॉन n की फॉर्म हो जाएगी. सो देयर इज 1 अपॉन b माइनस हो जाएगा ln m विच इज b माइनस x अपॉन n विच इज a माइनस x, राइट, एंड इज इक्वल्स टू kt प्लस c, इक्वेशन नंबर 3. अब इसके बाद जैसे पहले किया था, यहां पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन मान के चलेंगे, और इनिशियल में क्या करना होता है, t इक्वल्स टू 0. नाउ इन इनिशियल, यहां पे इनिशियल फॉर्मूला निकालेंगे. इनिशियल में क्या होने वाला है, इनिशियल में बहुत सिंपल सा फंडा है, t इक्वल्स टू 0 रखना होता है और x इक्वल्स टू ऑल्सो 0. सो पुट हियर बेटा, अगर यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन b माइनस a इन द ब्रैकेट ln b माइनस 0 अपॉन a minus 0, right, and is equals to k multiply t की वैल्यू 0 and plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. So there is 1 upon b minus a, 1 upon b minus a, and there is ln b upon a, ln b upon a is equals to c. तो हमने यहाँ पे बेटा c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. c की वैल्यू को वापस रिटेन करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन 3 में हम c की वैल्यू को रिटेन करने वाले हैं, और फिर से हम ड्राइव करेंगे कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट के लिए कौन सी फॉर्म बनने वाली है. सो लेट अस सी. तो फ्रॉम इक्वेशन 3, दोबारा से इक्वेशन 3 की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 3 को यहाँ पे बेटा लेंगे. तो इक्वेशन 3 में हमारे पास रखा है 1 अपॉन बी माइनस ए. सो देयर इज 1 अपॉन बी माइनस ए इन द ब्रैकेट ln b minus x upon a minus x is equals to kt and plus c. c is 1 upon b minus a ln b upon a. तो यहां पे इस तरह से आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को यहां से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे. तो ये पॉजिटिव फंक्शन है और इधर आकर के ये हो जाएगा बेटा नेगेटिव. तो हमारे पास हमें मिलेगा 1 अपॉन b माइनस ए, 1 अपॉन b माइनस ए एंड ln b माइनस x ओवर a माइनस x, और यहां माइनस इस वाले फंक्शन को इधर लेके आएंगे. तो 1 अपॉन b माइनस ए एंड ln b अपॉन a इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास रहेगा k. तो अब इस वाली फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक कॉमन पार्ट है 1 अपॉन b माइनस ए. सो इट विल बी टेक कॉमन. सो 1 अपॉन b माइनस ए, 1 अपॉन b माइनस ए, एंड हियर वी विल रिमेन ln b माइनस एक्स ओवर a माइनस एक्स, माइनस यहां पे बेटा हमारे पास बचेगा ln b ओवर a एंड इक्वल्स टू k t. यहां अगेन ln m माइनस ln n फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे. तो वी विल गेट 1 अपॉन b माइनस a एंड हियर विल गेट ln m. m is what is m? m is b minus x over a minus x अपॉन a. a की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, b अपॉन का a पहुंच जाएगा ऊपर. सो फाइनली यहां पे हमारे पास हो गया kt. तो सबसे पहले हमने यहां पे इस वाली फॉर्म को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे
और t को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। तो t को ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास k की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/t इंटू b माइनस a इंटू ln a/b b माइनस x अपॉन a माइनस x। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन 4 जो रहेगा, इट विल बी द मेन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड टाइप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड टाइप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां पे बेटा इसकी एक और अनोदर फॉर्मूला होती है कि अगर हम यहाँ पे एक काम करें कि इस वाले फंक्शन में से यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और ये माइनस जो है यहां रखेंगे तो माइनस को जब वहां पहुंचाएंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है n log x इज इक्वल टू log x टू दी पावर n होता है। मतलब ये पावर जो है x रेज जाती है, यहाँ पे जब पावर माइनस बन जाएगी तो यहाँ पे इसका इनवर्स ले लेंगे। तो इसकी जो अनदर फॉर्म जो आएगी वो कुछ इस तरह से होगी k इक्वल्स टू 1/t इंटू a माइनस b, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, a माइनस b, और यहाँ पे जब इनवर्स होगा तो इनवर्स होने पर क्या आ जाएगा ln, और जब इनवर्स होगा तो फंक्शन चेंज जाएंगे, क्या हो जाएगा b a माइनस x ओवर a b माइनस x, और जब यहाँ पे ln को हटाएंगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली वी विल गेट द फाइनल फॉर्मूला विच इज 2.303 ओवर t a माइनस b इन द ब्रैकेट log b a माइनस x ओवर a b minus x. So it will be the equation number 5, which is the main formula for the calculating rate constant for the second order reaction. तो आपने बेटा देखा आज की क्लास में हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए डेरिवेशंस किए, और वहां पे हमने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव किया। ये भी सेकेंड टाइप ऑर्डर के लिए ये रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले हैं, और इससे पहले वाले डेरिवेशंस में हमने सेकेंड टाइप ऑर्डर के लिए, फर्स्ट टाइप के लिए हमने रेट कांस्टेंट की का जो डेरिवेशन है, मतलब जो फॉर्मूला है वो ड्राइव किया। इस तरह से आप इसके बेसिस पर अपनी एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप न्यूमेरिकल को लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।